Hello everyone, welcome back. So in this particular video we are going to cover velocity, only velocity. In the last video we have covered about speed, and in this particular video we are going to deal with velocity. So speed is actually what we have studied in previous video, and if you want to practice more question on it, the video in this video's description there is a link where you can click and go and practice some question. And can you check if you don't have read velocity from this channel also, if you read it from anywhere else, you can also check your progress that what you have studied in the speed. Okay, so for checking your progress you can really visit that link and can practice question from that. Okay, so now we are starting with our today's topic. So our today's topic is velocity. Velocity. So what actually is velocity? Velocity is defined as the rate of change in displacement. Okay, it is defined as the rate of change in displacement, and the distance is the total distance upon total time gives us the speed. In the same way, velocity. Now listen it very carefully, that velocity is represented by a small v and arrow is been given here. Why arrow is given? I will explain it. Displacement. Here also an arrow divided by time. So this is the formula of velocity. It is defined as the rate of change of displacement. Rate of change of displacement. Okay. Now this is the mathematical formula which we know about. This is, now I have told you that any physical quantity has four things. First is its definition, if it has mathematical formula, its unit, and its what kind of quantity it is, and dimension. So same we are going to do here also. Unit is what? Unit of displacement we have studied in previous video, that is meter, and this that of second is that of time is second. So this becomes meter per second is the unit of velocity. Now it is a vector quantity. It is a vector quantity. Why it is a vector quantity? See, I have told you that why this arrow is given. I have told you in the very first video that whenever you represent a scalar quantity, you just give arrow on that to actually identify whether that physical quantity is only has magnitude or it will give you direction as well. तो जहां पर हम ये साइन लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन हमें शो करेगा. ठीक है, तो ये क्या है हमारा वेलोसिटी था. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है, और ये भी हमारा वेक्टर है, और जो वेलोसिटी है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, अभी हम डायमेंशंस थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं. इसका डायमेंशंस फिर से एक बार देख लेते हैं. अब इसका डायमेंशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट को भी लेंथ में ही मेजर करते हैं ना, टाइम तो टाइम ही है, ऊपर आता है तो क्या बन जाता है एल टी पावर -1. दिस इज दी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. तो इतना चीज हो चुका है, इसका डेफिनेशन हो गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वेक्टर क्वांटिटी एंड डायमेंशन. ठीक है, अब चलते हैं इसके थोड़ा सा टाइप पे. टाइप इसका देख लेते हैं एक बार. ठीक है, टाइप के साथ ग्राफ भी देखते चलेंगे सबका, जैसे हमने कल किया था. और कल कुछ ग्राफ में मिस्टेक्स हुए मेरे से, सॉरी फॉर दैट. उस मिस्टेक को अभी हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, उस मिस्टेक से थोड़ा हम लोग अभी डील करते हैं. ठीक है, अभी ग्राफ आएगा तो. ओके, पहली चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी.
तीसरा एवरेज वेलोसिटी, और लास्ट इंस्टेंटेनियस velocity. Okay, uniform velocity, non-uniform velocity, average velocity, instantaneous velocity. These are the types of velocity. Now what is equal displacement? Uniform velocity is defined as equal displacement. I'll represent with sign of displacement in equal interval of time. So uniform velocity is defined as equal displacement in equal interval of time. How? ग्राफ देखते हैं फिर से एक बार इसका। देखो ग्राफ में एक चीज कल गलती हो गई थी, वो क्या था कि ग्राफ जो होता है हमारा, ये y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस की तरफ हम क्या करते हैं ना, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हम यहां पर थोड़ा सा रब करते हैं अभी। तो x एक्सिस पे हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को, ठीक है, और इधर डिपेंडेंट क्वांटिटी को। यहां पे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था। और ग्राफ हम पढ़ते क्यों, सबसे पहला बात, ग्राफ क्यों पढ़ते हैं? देखो ग्राफ से क्या है ना, हमें एक सिस्टमैटिक क्या होता है, डिस्प्ले मिलता है इंफॉर्मेशन का। जैसे अब अगर कोई स्कोर, अगर कुछ प्रोडक्शन रेट जानना हो कोई भी चीज में, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें इंडिया का पिछले 10 साल का ग्रेन प्रोडक्शन जानना हो, तो पहला बात कि तुम अगर डेटा याद रखना चाहो तो ये बहुत मुश्किल होता है। अगर फिगर्स को देख पाओगे, अगर तुम चार्ट्स को देख के, चार्ट्स के थ्रू, ठीक है, लाइंस के थ्रू, लाइन रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, वो सब चीजें ग्राफ में होती हैं। ग्राफ से हम किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके इंफॉर्मेशन को और सिस्टमैटिक वे में हम समझ सकते हैं, ठीक है। ग्राफ का मोशन में यूज करें या फिर डेली लाइफ में यूज करें, सब जगह यूज बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल क्या यूज है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी हमारा क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है हमारा, हमको सबको पता है यार, यहाँ पे क्या होगा, s, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, टाइम। अब चलो थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन से लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, अब याद रखना, अभी हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, अभी हम डायरेक्शन हमारा जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, A to B, यहाँ पे पॉइंट C, चलो यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं x, यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट y। चलो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड किया वो था 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का फिर था 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट था हमारा वो था 15 मीटर। 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और 15 सेकेंड, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में 5 और 10 का, और इन दोनों के बीच में, अच्छा यहाँ पे देखो हमने गलती कर दिया, देखो यहाँ पे जो है ना पॉइंट, इन दोनों के बीच का 15 ले लो, इन दोनों के बीच का 20 ले लो, और यहाँ से फिर 20 सेकेंड्स में। तो हर जगह हम 5 का स्केल लेते हैं, ये तो हमारा पता है ओरिजिन होता है, तो 5, 10, 15, 20, फिर यहाँ पे 5, 10, 15, 20, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट, जब टाइम 5 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, 5 मीटर, exactly here. Now when the time was 10 second, the object was at 10 meter. We have taken a scale of 5. Now in 15 second it covered another 5 meter, in 20 second it covered another 5 meter. Now by joining this line, what do we get? Roughly my drawing is very wrong, and so please don't mind it. This becomes a straight line. So for uniform velocity, the ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन होता है, और हर जगह एंगल का वैल्यू क्या होगा, हर जगह देख लो एंगल की वैल्यू विल बी सेम, हर जगह एंगल थीटा 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 ही मिलेगा। अभी टैन की कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी होगी, ठीक है, जैसे 2 टैन की वैल्यू याद रखिए, टैन 30 की वैल्यू, ठीक है,
tan 45 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू, और हमारे पास कौन सा एंगल होता है, tan 90 डिग्री की वैल्यू। इतना याद रखिए आप। tan 50 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/√3। tan इसका वैल्यू होता है हमारे पास 1, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू 1। हाँ, इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। इतना आप tan की वैल्यूज को याद रखिए। tan क्या है वो भी बता रहा हूँ, देखो tan क्या होता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस है, ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे वैल्यूज हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, हम रेशियोज पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियोज को पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें भी हमारा एक फंक्शन आता है tan थीटा। tan थीटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर ये पॉइंट पे मुझे एंगल निकालना है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, समझो यहाँ पर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये बताओ, अच्छा अच्छे से विजुअलाइज कराते हैं एकदम अच्छे से। देखो स्ट्रेट लाइन बनाना था, फिर मिट गया, फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15। चलो तुम्हें बोला गया कि यहाँ, फिर से गलत, चलो समझो यहाँ पे बनाना था। तुम्हें बोला गया कि बताओ यहाँ पे एंगल जो है वो tan थीटा ही क्यों हुआ, tan थीटा ही क्यों हुआ। तो एक काम करना, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना नीचे। अब बताओ एंगल के सामने वाला क्या होता है हमारे पास, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जिस पे ये एंगल बनाता है वो हमारा बेस होता है। तो ये अगर परपेंडिकुलर है, ये अगर बेस है, तो tan थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट इज व्हाई स्लोप इज कैलकुलेटेड एज tan थीटा। tan थीटा को ही हम स्लोप क्यों मानते हैं, क्योंकि जब यहां से ये देखो, ये हमारा बेस होता है, थीटा के सामने वाला साइड पढ़ा होगा आपने कि एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। तो ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला क्या हो गया हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही तो हमें मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सीधा सीधा इसको भी डिफाइन कर दिया। नॉन यूनिफॉर्म को, इस वैल्यूज को सारे को लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं काम आ जाए। और कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा एवरेज स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अभी डेफिनेशन मतलब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत सारे 3 डेफिनेशंस बनते हैं, लिखिएगा आज उसको, ठीक है। ओके, अच्छे से अब थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हम मान के क्या चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है इस बार वो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। चलो A B C D, यहां से यहां तक 10 मीटर, फिर यहां से यहां 15 मीटर, यहां से यहां ले लिया भाई हमने 21 मीटर ले लिया। सेकंड को हम टाइम को क्या करते हैं 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर बोल रहा हूँ, 5 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे 20 सेकेंड, ठीक है। चलो प्लॉट करते हैं अब जरा सा। इधर स्केल हम 5 का ले लेते हैं, 5 10 15 और यहाँ पर 20। ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे 5 का स्केल ले लेते हैं, 5 10 15 एंड 20। यहाँ पे एक छोटा सा 21 ले लेते हैं ताकि प्लॉट करने में आसानी हो, और नीचे ले लेते हैं यहाँ पर। ओके चलो प्लॉट करते हैं। 5 सेकेंड पे बॉडी का है 10 मीटर के पास, चलो यहाँ पे, फिर 15 10वें सेकंड में 15, ठीक है, फिर 15 सेकंड में 21। अब जरा से इसको मिला करके देखो, कर्व लाइन बनाना। सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ऑलवेज अ कर्व्ड लाइन, इज ऑलवेज अ कर्व्ड लाइन। अब एक और केस आता है, एक और केस आता है जहां हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये बताओ ये कौन सा केस होगा। अगर बॉडी अगर यहां से चल करके गया और वो पैरेलल जो टाइम एक्सिस है, तब क्या होता है, तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में बॉडी रेस्ट पे होगा। इसका कंडीशन हर जगह हर ग्राफ में अलग अलग है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका जो कवरेज होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में व्हेनेवर द लाइन, लिखो व्हेनेवर line in
which graph it is, displacement या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग और इज एट रेस्ट, या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर नहीं मूव कर रहा है, वही बात है, ठीक है। तो जब पैरेलल होगा तो ये, अब एक सवाल है मेरे पास, एक सवाल है, अब अगर ये तो हमें पता है कि ये हमें वेलोसिटी देगा, लेकिन बताओ ये हमें क्या देगा। अच्छा ये तो अच्छा वेलोसिटी वाले केस में, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सॉरी। तो ये था हमारे पास ये हमारा ग्राफ था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब चलते हैं थोड़ा सा एवरेज का, और एवरेज का आज ना सही में बहुत अच्छा आपको फील दिलाएगा, अभी देखो आप, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब देखो, अब यही नहीं समझ आता कि वेलोसिटी में और एवरेज में किस तरीके से हम लोग उसको फील करते हैं, ठीक है। तो देखो ग्राफ से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस को इसी पे समझेंगे। देखो इंस्टेंटेनियस जो था ना हमारा कुछ नहीं था, अभी देखो ये क्या होगा ना, अभी इसमें एक बहुत मजेदार चीज करेंगे, अभी ध्यान से देखिएगा इसको। समझो कि यहाँ पर एक पॉइंट था जिसको हमने बोल दिया x1, ठीक है, x1 y1, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट था x2 y2, आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं थोड़ा, अभी हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पर, इसको x2 y2, फिर इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे x1 y1, ओके। तो एक बात बताओ, यहाँ पर अगर एवरेज कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कर देंगे, ओके, वैसे करेंगे, या फिर यहाँ पे कुछ अलग चीज लगाएंगे? तो याद रखो इसका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन भी है। अब पार्टिकल जरूरी तो नहीं है यार, यहाँ पे है, देखो एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ टाइम होगा, यहाँ पर, फिर यहाँ पर कुछ टाइम होगा, लेकिन बॉडी गया कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ। अब जरा इस पॉइंट पे ऐसे गया बॉडी ऐसे गया। अब जरा यहाँ पे एक पॉइंट से लेके यहाँ पे इसको जरा मिला करके देखो, देखो ये हमने कहाँ से मिलाया, ये हमने कहीं से नहीं मिलाया, हमने बस इसको ज्वाइन कर दिया है, ये जो टाइम एक्सिस है ना इससे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब ये बताओ जब ये पूरा डिस्टेंस, ये जब पूरा, ये हमारे पास पूरा डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ x1 है, और ये पूरा से पूरा ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा, और ये कितना है पूरा, ये हो गया है y2, और ये है हमारा, यहाँ से यहाँ तक है हमारा x2, सॉरी फिर गलत हो गया, रुको एक बार अच्छे से इसको बनाते हैं फिर समझते हैं, ओके। तो जो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा x1 y1, फिर यहाँ पे पॉइंट x2 y2, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन हो गया ये। अब टाइम एक्सिस जो है ना, यहाँ पे अगर समझो बॉडी था तो यहाँ से यहाँ तक का बॉडी का डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। अब अगर x1 को अगर हम यहाँ पे जोड़े तो अगर समझो कि ये, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये x1 है और यहाँ पर x2 है तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, बेसिक मान लगाया कुछ नहीं किया, देखो यहाँ का डिस्टेंस पूरा x2 और इधर का पूरा डिस्टेंस x1, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो ये होगा, और यहाँ पे हमारा y1 है और यहाँ पे हमारा x2 था। अब देखो, अब बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, याद रखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, y2 माइनस y1, कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे y1 था,
यहाँ पर y1 था, ये पूरा डिस्टेंस कितना था y1 था। और यहाँ पे हमें क्योंकि इस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना है, तो यहाँ पे हमारा y2, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y2 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा y2 माइनस y1। अगर यहाँ पे 4 है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, तो 4, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। वही चीज सेम चीज हमने किया है यहाँ पर भी कि हमने यहाँ पर x2 ले लिया है, यहाँ पे x2 था, यहाँ पे x1 था, तो ये कितना हो गया x2 माइनस x1। वैसे ही यहाँ पे हमारा y2 था, यहाँ पे हमारा y1 था, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया y2 माइनस y1। ठीक है, अब एक बहुत जबरदस्त चीज, अब आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यही तो होगा, यही वाला तो होगा। तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम what do we conclude that डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा क्या होगा, क्या लगाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और अलग लिखते हैं इसको, यहाँ पर लिख देते हैं डस्टर को पकड़ के रखना बहुत डिस्प्लेसमेंट जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, एवरेज निकाल रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कुछ नहीं लगाया है, इसे कहते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्लास 10 का टॉपिक है। बट यहाँ पर बहुत सिंपल सा चीज है, यहाँ पे हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस इज इक्वल टू, इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाइपोटेनस देन वी नो दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ नहीं किया यहाँ पर, रूट को स्क्वायर को हटा के यहाँ पर रूट लगा दिया, और x2 माइनस x1 जो डिस्टेंस यहाँ का था, y2 माइनस y1 यहाँ का डिस्टेंस, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब क्या लिख सकते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, टाइम कितना चेंज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट s एवरेज इज इक्वल टू रूट अंडर डेल्टा x प्लस डेल्टा y, यही तो है, अपॉन टोटल टाइम। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये हमारे पास जाकर के आ गया, तो सॉरी रूट हटा दो अभी। ठीक है, अभी रूट हटा दो, डेल्टा x प्लस डेल्टा y, चेंज इन डेल्टा x ओके एंड चेंज इन डेल्टा y डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स अस द एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस का कैसे फील लेते हैं, देखो इंस्टेंटेनियस हम यहाँ से बॉडी गया, यहाँ गया, अब इन दोनों के बीच का देखो ये कितना स्मॉल डिस्टेंस है, कितना, अगर ये 1 सेकंड है और ये 2 सेकंड है, तो ये 1 से 2 सेकंड के बीच का कितना छोटा टाइम इंटरवल है, और ये डिस्टेंस देखो, अगर यहाँ पे y1 लोगे ना तो ये y1 बाई हाफ हो जाएगा। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस का केस, ये होता है हमारा एवरेज का केस, दोनों में यही पे डिफरेंस आता है। हमने आपको यहाँ पर बताया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डेल्टा x प्लस डेल्टा y डिवाइडेड बाई टी। अब क्या कर दिया हमने, बस इसको हमने यहाँ से x2 माइनस x1 को वो कर दिया है, कॉमन ले लिया है यहाँ से, ठीक है, दोनों तरफ से, और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड हमने सब आपको बताया, ग्राफ भी इस बार डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के तरफ। कुछ क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन इसके बाद हम लोग एक रखने वाले हैं, जिसमें अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको हम लोग काउंटर करने वाले हैं। ठीक है, और अभी आपको तो क्वेश्चन मिल ही रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, डिस्क्रिप्शन आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक ऑफ द प्रीवियस वीडियोस। तो assume it that calculate the velocity of an object whose initial point is 2 meter and final point is 6 meter. Okay, in time in 6 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी देखो यहाँ पे लगाना जरूरी है, एरो लगा देना, नहीं तो पता चलेगा स्पीड हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज इनिशियल स्पीड। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बताया था ना, डिफरेंस बिटवीन फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। सो 6 minus 2 divided by 6, so this is 4/6, we get it as 2/3, and this will come around 0.6, again 0.6, let us say 0.6, बाहर लगा दिया यार, ठीक है। This was the actually the question. Next question. Suppose a body is here from a point A, it goes to point B and then covers a distance of 5 meters, and again B to C and covers a distance of 6 meters. Now calculate average velocity of body if total time taken was 10 सेकेंड। अगर इस हमें एवरेज वेलोसिटी बताना है इस पूरे ड्यूरेशन का, जब टोटल टाइम लगा हमें 10 सेकेंड। अब बताओ यहां से यहां तक बॉडी गया तो हमें क्या पता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट ज्वाइन करो। व्हाट इज AC? AC is equal to root under 6 square plus 5 square. This is 36 plus 25, we get it as root under 61. So this is what AC got root under 61. ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, root under 61, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, V एवरेज। अब हमें पता है ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, root under 61 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 10 सेकेंड। ये आ गया हमारा, ये मीटर पर सेकंड हमने लगा दिया इसकी यूनिट। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गया। पर चेक कर लेते हैं, 25 plus 36 we get it as 6 5 11, 3 2 5 6 root under 11, then this is root over 61 divided by 10 second. Okay, so this was the question part. Okay, if you want to practice more questions on that, then we will provide link in the description from where you can practice more questions also. Okay, so okay, we are ending up here only, or should we practice some more questions? Should we practice some more questions? Okay, let us practice some questions on graph. Okay, let us practice questions on graph. Okay, what kind of speed it will represent? Tell the suppose this is white, this is 4 5 and this coordinate is 5 6. Okay, and this is a point and the angle here is 60 degree. Find the slope, find slope find करो by both दोनों जगह लिख दिया, by both methods. What are both methods? कैसे फाइंड करेंगे स्लोप को? देखो पहला फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1, दूसरा क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा क्वेश्चन को मैंने चेंज करने दो, show that slope is changing। तो देखो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करता हूँ। y2 minus y1, y2 मैंने इसको मान लिया, y1 इसको मान लिया, 6 minus 5 1, 5 minus 4 is equal to 1। स्लोप कितना आ गया, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan 60 की वैल्यू √3। तो हमें पता चल गया, देखो मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट में कहीं पर भी एंगल, कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी एंगल कुछ भी ले लो,
या फिर कोऑर्डिनेट्स ले लो, जो हमारा वो आता है ना, जो स्लोप आता है हमारा वो हमेशा कांस्टेंट आता है, ठीक है। चलो अब अगर यहाँ से नहीं आना हो तो फिर से करते हैं। चलो यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले लेते हैं 6 2, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं 7 4, 4 - 2 2 हो जाएगा, 7 - 6 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप 2, यहाँ पे स्लोप 1, साफ साफ पता चल रहा है कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन पार्ट। We'll discuss question practice in the next session, in which we will be discussing about the about actually the difference between speed and velocity, and practice some questions on whatever we have studied till now. Okay, till then, goodbye.